प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और उसके विपरीत हम देखें तो डीमोनेटाइजेशन, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। 2016 में जो ये डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी लेकर आए, इससे क्या हुआ, जो नॉर्मल छोटे एमएसएमई के व्यापारी थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। तो बराबर हम देख सकते हैं ये किसी भी समुदाय के अपने नहीं हुए। हमारे आदिवासी भाई और बहनें आज वो भी संघर्ष कर रहे हैं जल जंगल जमीन के लिए, उनके अधिकारों के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ना ये सरकार किसी की भी, चाहे वो इस देश का अन्नदाता हो, महिला हो, छात्र हो, युवा हो या छोटे व्यापारी हो या लेबरर्स हो, किसी की भी अपनी नहीं है। जो हमारे देश के मजदूर वर्ग हैं वो महंगाई से पूछना चाहती हूँ कि आपको बाहर देश जाकर मेलोडी खिलाने का बहुत शौक है, लेकिन हमारे देश में जो अन्याय हो रहा है, जो मणिपुर जल रहा है, उस राज्य में आपको एक बार भी जाने का मौका नहीं मिला। आखिर क्यों? ये सवाल हम सब लोगों का है, इस देश में रह रहे गरीब मजलूम जनता का है, एक महिला का है, एक युवा का है, एक छात्र का है। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्राइवेटाइजेशन हुआ क्या, जब रिजल्ट आता है तो पूरा नेशन, पूरा कंट्री शॉक में है। बीजेपी वहां जीत गई तो कैसे जीती? अब इस बात को आप बिहार का चुनाव ले लीजिए, जहां खुलेआम एसआईआर का दुरुपयोग करके बहुत सारे वोटर्स को काट दिया गया। हमारे बंगाल में एकमात्र जो महिला मुख्यमंत्री थी, उनको किस तरीके से प्रताड़ित और हरास किया गया। महीनों से षड्यंत्र रचकर एसआईआर के द्वारा उन्होंने कितना कंप्लेन किया, इसके बावजूद वहां पे बंगाल में चुनाव वो हार गई। तो बीजेपी साम दाम दंड भेद कर उनका सिर्फ एक ही ఎలక్ట్రల్ డెమోక్రసీ మీదనే ఇంత పెద్ద అటాక్ అయింది. మీనాక్షి నటరాజన్ లాంటి ఒక గాంధీయన్ ఒక స్త్రీని వాళ్ళు ఎంత కుట్రతో చేశారంటే, రోజు రోజుకి మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటే ఎన్ని కుట్రలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఏదైతే నేను change.org ఒక పిటిషన్ కూడా నడిపించాను, అరౌండ్ 6,000 సిగ్నేచర్స్, వెరిఫైడ్ సిగ్నేచర్స్ ఇప్పుడు దాకా వచ్చేసినాయి. మేము తప్పకుండా ఈ కేసు కనుక ఎలక్షన్ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తే మేమే గెలుస్తాం, నిశ్చయంగా 100% మేము గెలుస్తాం. అట్లాంటి కేసు ఇది. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇంకొకటి వచ్చింది, జయవర్ధన్ గారు అక్కడ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలోని ఎమ్మెల్యే, మధ్యప్రదేశ్ లోని ఎమ్మెల్యే, ఏమైనా బయటపడింది, ఏదైతే ఆయన కంప్లైంట్ పెట్టారో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెంట్ తరఫున, అది మొత్తము ఆర్టికల్ 220 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి విరుద్ధంగా చేసింది. ఆయన ఒక జస్టిస్ అయి ఉంది, జస్టిస్ ఆర్య. ఆయన జస్టిస్ ఆర్య తను ఒక రిటైర్డ్ జడ్జ్ అయి ఉండి, ఆయనకి సంవిధానం ప్రకారం ఏ అథారిటీ ముందు ఒక పిటిషన్ పెట్టే హక్కు లేదని సంవిధానంలో ఆర్టికల్ 220 రాసి ఉన్నా కూడా ఆయన ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందెళ్ళి మీనాక్షి నటరాజన్ అన్న క్యాండిడేసీ అగేన్స్ట్ ఆయన అక్కడ ఇచ్చిండు. అదొక ఫ్రాడ్, అదొక ఫ్రాడ్ ఆన్ ఇండియా. అట్లాంటి ఫ్రాడ్ ని అక్కడ ఉన్న సీఓకి వెళ్ళి మన కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడితే ఆ సీఓ వెధవ ఏమన్నాడు తెలుసా? అవును, ఇది నేను చేసిన తప్పు అని చెప్పినాడు. ఇట్లాంటి కుట్రలో మనం బ్రతుకుతున్నాం. ఈ రోజు తొందరనే దీంట్లోంచి విముక్తి వస్తుంది. మన రాహుల్ గాంధీ గారు దేశానికి పిలిపించినారు. సత్యం, నాన్ వైలెన్స్ అంటే అహింస, దాని తర్వాత రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎదుర్కోవడం. ఈ సత్యం చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఒబ్జెక్షన్ తిరగజేయాలా, ఆ ఒబ్జెక్షన్స్ అన్ని అట్లాంటివే ఉన్నాయి అందులో. కాబట్టి 100% మనం గెలుస్తాం. వీళ్ళు ఏదైతే కుట్ర చేస్తున్నారో ఓ పురాణం ఒకటి ఉంది, ఈ కుట్ర పన్నే వాళ్ళు వేరే కుట్రలు ప్లానింగ్ చేసుకుంటారు, కానీ భగవంతుడి ప్లానింగ్ సత్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడి దయతో, ఆ భగవంతుడి ప్లానింగ్ తో, మన అందరి శ్రమతో మీనాక్షి గారు రేపు రాజ్యసభలో మనం చూసి తీరుతాం. ఈ దేశాన్ని ఈ మోడీ లాంటి కుట్ర వ్యవస్థ, కరప్ట్ వ్యవస్థ, ఏదైతే కమ్యూనల్ వ్యవస్థ ఉందో ఆ వ్యవస్థ నుంచి మనం బయటకు వచ్చి మన దేశాన్ని మనం రక్షించుకుంటాం అని మనందరం ఇక్కడ సత్యాగ్రహం నుంచి మనం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద ఆర్గనైజర్స్ అండ్ ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ప్రెజెంట్ హియర్. इसका मुख्य कारण ये है कि मीनाक्षी नटराजन जो इंडियन हमारे कांग्रेस पार्टी के खड़ाए हुए राज्यसभा के कैंडिडेट है, उसकी कैंडिडेसी को बहुत बुरी तरीके से धज्जियां मार के जो उड़ाया गया, वो लोग समझ रहे कि वो पार्टी को
की नुकसान करे, पूरी भारत देश की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की नुकसान करे, संविधान की नुकसान करे। ये तो 2015 से उससे पहले ही हम देख के आ रहे हैं कि उनको संविधान पे नहीं चलना है और वही काम आज जो करके बताए, क्योंकि वो देश में इलेक्शंस को फेस करने, लोगों को संविधान के तरीके से, इलेक्शन के तरीके से फेस करने के लिए, सूरत दिखाने के लिए नहीं है और वो बिल्कुल नहीं जीतते पाएंगे। इसकी वजह यह है कि वोट चोरी और जो अभी जो सीट चोरी करे, इतनी बुरी तरीके से करे कि वो जो जज आर्या जो साइन करा कि ये बीजेपी कैंडिडेट के पास ये फलाना फॉर्म 26 में नहीं भरे, वो जो आदमी भरा जस्टिस आर्या, उसके पास संविधान के आर्टिकल 220 के मुताबिक उन्हों कोई देश, पूरी देश में कोई भी अथॉरिटी के सामने वो कुछ भी नहीं बोल सकता, उनको हक ही नहीं है। वैसा जिसको हक नहीं है उसकी पत्र के बुनियाद पे ये लोग एक सीट की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, और पूरी उनकी जो बहुमति थी उनको वैसी कैंडिडेट को हटाने के लिए एक प्लान बना के थर्ड कैंडिडेट को लगा कर रहे। ठीक है, अगर थर्ड कैंडिडेट को लगा के भी लाए वहां पर तो कंटेस्ट के बिगाड़ को कैसे इलेक्ट होगा, क्योंकि उनके पास वोट ही नहीं है बचे हुए 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद। तो इस तरह से कई फ्रॉड है, और वो सिर्फ एक रेस्पोंडेंट थे, वो बिल्कुल एक्यूज नहीं थे, और वो ऐसी हल्की केस थी जिसको वो रिजेक्ट होने के दूसरे ही दिन यहाँ के नागपल्ली कोर्ट के जज ने उसको धिक्कार करके डिसमिस करके कचरे में डाल दिया। ऐसी केस के बुनियाद पे कि वो नहीं लिखे, ऐसी बुनियाद पे जो सही आदमी नहीं दिया, जो सही केस नहीं था और लिखना वाजिब भी नहीं था, ऐसी चीज पे वो मीनाक्षी नटराजन इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट को निकाल दिए। ये उनकी फ्रॉड की पूरी एक्सपोजर है। ट्रिब्यूनल जाएंगे, जीतेंगे, आरएस में बराबर मीनाक्षी नटराजन को, देश की संविधान को, देश के इलेक्टोरल ड्रामा से हम बचा के रहेंगे। कुछ भी भाई साहब, नेतृत्व संगम में के पूरे तेलंगाना के साथी मिलकर आज गांधी भवन में सड़क सत्याग्रह का घोषणा किए कि पूरे देश में बैक से आ जाओ, इलेक्शन होना चाहिए। सत्याग्रह का चल रहा है क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव भी हो रहा है। बीजेपी पहले सीट चोरी करती थी, वोट चोरी करती थी, अब सीट चोरी करना शुरू कर दी। और बीजेपी पहले से हिंदू मुसलमान बोल के लड़ाती थी, मुसलमान को दिखा के हिंदू को ऑर्गेनाइज करने की काम कर रही है, और हिंदुओं की दलित को ऑर्गेनाइज करने के लिए दूसरे मुद्दे को भगवान की तरफ मोड़ देती है। ये उनका षड्यंत्र है। वैसे ही आज मीनाक्षी जी का सीट चोरी किए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण सपोर्ट था, नहीं था, तो उनका दरखास्ती खारिज कर दिया। ये पूरा षड्यंत्र की तरफ से हुआ। उसके बाद वो सीट चोरी करना मीनाक्षी जी शुरू हुई है, अब वहाँ नहीं रुकने वाली है। ऑलरेडी ममता बनर्जी के 20 MP का चोरी हो गया, कल शिवसेना के 6 MP का चोरी हो गया, और बहुत जल्दी DMK का और जगन पार्टी का MP का भी चोरी होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ गणतंत्र नहीं बचा, संविधान के बेसिस पे, वोट के बेसिस पे जो जीत के आते वो नहीं बचा। पूरे मनु धर्म के हिसाब से इस देश को बनाने का बीजेपी का षड्यंत्र जो है वो आगे बढ़ रहा है। उससे पूरे देश का संविधान खत्म होगा, हर किसी का वोट खत्म होगा और गणतंत्र खत्म होगा। इसको बचाने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये सत्याग्रह आज यहाँ लगाया गया है। और ये वोट चोरी से बचने के लिए, मध्य प्रदेश में मीनाक्षी जी का सीट चोरी से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ही हमको इन्फॉर्मेशन दी बोलते हैं, उसको डाइवर्ट करने का षड्यंत्र में बीजेपी, RSS और यहाँ के मीडिया, बीजेपी RSS मीडिया है, ये मिल के बनाया है। यहाँ केस ही नहीं है, केस नहीं है तो रिजेक्शन कहाँ से? केस ही नहीं है तो रिजेक्शन कहाँ से? अरविंद कुमार जो IAS ऑफिसर, प्रमोट IAS ऑफिसर था, वो खुद बता रहा है मेरा ऊपर दबाव। किसका दबाव था? और रिटर्निंग ऑफिसर का ऊपर किसका दबाव था? ये बोल रहा है मेरा भी परिवार है, तुम्हारा